بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں کیوں نہ اس ذات کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اس ذات کے علاوہ کسی کو معبود بناؤں؟ جبکہ اگر خدائے رحمان مجھے ضرر پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ تب تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں، لہذا میری بات سن لو۔ اس سے کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا ہے، اور اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم کوئی لشکر اتارنے والے تھے۔ وہ تو محض ایک ہی چیخ تھی، بس وہ یکایک بجھ کر رہ گئے۔ ہائے افسوس ان بندوں پر جن کے پاس جو بھی رسول آیا اس کے ساتھ انہوں نے تمسخر کیا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا؟ اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے اور ان سب کو ہمارے روبرو حاضر کیا جائے گا، اور مردہ زمین ان کے لیے ایک نشانی ہے جسے ہم نے زندہ کیا اور اس سے غلہ نکالا جس سے یہ کھاتے ہیں۔ اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، اور ہم نے اس زمین میں کچھ چشمے جاری کیے تاکہ وہ اس کے پھلوں سے اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائیں۔ تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جنہیں یہ جانتے ہی نہیں۔ اور رات بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے، جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج اپنے مقررہ ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ بڑے غالب آنے والے دانا کی تقدیر ہے۔ اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح لوٹ جاتا ہے۔ نہ سورج کے لیے سزاوار ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے سکتی ہے، اور وہ سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور یہ بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی جیسی اور سواریاں بنائی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر ان کے لیے نہ کوئی فریاد رس ہوگا اور نہ ہی وہ بچائے جائیں گے، مگر ہماری طرف سے رحمت ہے، اور جس سے انہیں ایک وقت تک متاع حیات مل جاتی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس گناہ سے بچو جو تمہارے سامنے ہے، اور اس عذاب سے جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق تمہیں اللہ نے عنایت کیا ہے اس سے کچھ رائے خدا میں خرچ کرو، تو کفار مومنین سے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو بس سری گمراہی میں مبتلا ہو۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا؟ در حقیقت یہ ایک ایسی چیخ کے منتظر ہیں جو انہیں اس حالت میں گرفت میں لے گی جب یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ تو وہ وصیت کر پائیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف واپس جا سکیں گے،
اور جب سور پھونکا جائے گا تو وہ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہیں گے ہائے ہماری تباہی، ہماری خواب گاہوں سے ہمیں کس نے اٹھایا۔ یہ وہی بات ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ وہ تو صرف ایک چیخ ہوگی، پھر سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اس روز کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں بس وہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم عمل کرتے رہے ہو۔ آج اہل جنت یقیناً کیف و سرور کے ساتھ مشغلے میں ہوں گے۔ وہ اور ان کی ازواج سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں ان کے لیے میوے اور ان کی مطلوبہ چیزیں موجود ہوں گی۔ مہربان رب کی طرف سے سلام کہا جائے گا، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری بندگی کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور بتحقیق اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے۔ تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آج اس جہنم میں جھلس جاؤ اس کفر کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیتے ہیں اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کے بارے میں جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک بھی جائیں تو کہاں سے راستہ دیکھ سکیں گے؟ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں انہی کی جگہ پر اس طرح مسخ کر دیں کہ نہ آگے جانے کی استطاعت ہوگی اور نہ پیچھے پلٹ سکیں گے۔ اور جسے ہم لمبی زندگی دیتے ہیں اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں۔ کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور ہم نے اس رسول کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ اس کے لیے شایان شان ہے۔ یہ تو بس ایک نصیحت کی کتاب اور روشن قرآن ہے تاکہ جو زندہ ہیں انہیں تنبیہ کرے اور کافروں کے خلاف حتمی فیصلہ ہو جائے۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، چنانچہ اب یہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے انہیں ان کے لیے مسخر کر دیا، چنانچہ کچھ پر یہ سوار ہوتے ہیں اور کچھ کو کھاتے ہیں، اور ان میں ان کے لیے دیگر فوائد اور مشروبات ہیں۔ تو کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیا ہے کہ شاید انہیں مدد مل سکے، حالانکہ وہ نہ صرف ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ الٹے ان معبودوں کے تحفظ کے لیے آمادہ لشکر ہے۔ لہذا ان کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنجیدہ نہ کرے۔ ہم سب باتیں جانتے ہیں، جو یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، اتنے میں وہ کھلا جھگڑالو بن گیا، پھر وہ ہمارے لیے مثالیں دینے لگتا ہے اور اپنی خلقت بھول جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے ان ہڈیوں کو خاک ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر قسم کی تخلیق کو خوب جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، آیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کرے؟ کیوں نہیں؟ وہ تو بڑا خالق دانا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اس کا امر یہ ہوتا ہے، ہو جا، بس
वो हो जाती है। बस पाक है वो जात जिसके हाथ में हर चीज की सल्तनत है और उसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो। कसम है पूरी तरह सफ बांधने वालों की, फिर बतौर कामिल छिड़की देने वालों की, फिर जिक्र की तिलावत करने वालों की। यकीनन तुम्हारा माबूद एक ही है, जो आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके दरमियान है सबका परवरदिगार और मशरिकों का परवरदिगार है। हमने आसमान दुनिया को सितारों की जीनत से मुज़य्यन किया और हर सरकश शैतान से बचाव का जरिया भी, कि वो आलम बाला की तरफ कान न लगा सके और हर तरफ से उन पर अंगारे फेंके जाते हैं, धुतकारे जाते हैं और उन पर दायमी अजाब है। मगर उनमें से जो किसी बात को उचक ले तो एक तेज शोला उसका पीछा करता है। तो उनसे पूछ लीजिए कि क्या उनका पैदा करना मुश्किल है या वो जिन्हें हमने उनके अलावा खल्क किया है। हमने उन्हें लेजदार गारे से पैदा किया। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज्जुब कर रहे हैं और ये लोग तमस्खुर करते हैं। और जब उन्हें नसीहत की जाती है तो नसीहत नहीं मानते, और जब कोई निशानी देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ये तो एक खुला जादू है। क्या जब हम मर चुकेंगे और खाक और हड्डियां हो जाएंगे तो क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे? क्या हमारे अगले बाप दादा भी उठाए जाएंगे? कह दीजिए हाँ, और तुम जलील करके उठाए जाओगे। वो तो बस एक छिड़की होगी। फिर वो अपनी आंखों से देखेंगे और कहेंगे हाय हमारी तबाही, ये तो यौम जज़ा है। ये फैसले का वो दिन है जिसकी तुम तकजीब करते थे। घेर लाओ जुल्म का इर्तिकाब करने वालों को और उनके हम जिन्सों को और उन्हें जिनकी ये पूजा किया करते थे अल्लाह को छोड़कर। फिर उन्हें जहन्नुम के रास्ते की तरफ हाको, उन्हें रोको। उनसे पूछा जाएगा तुम्हें हुआ क्या है कि तुम एक दूसरे की मदद नहीं करते? बल्कि आज तो वो गर्दनें झुकाए खड़े हैं और वो एक दूसरे की तरफ रुख करके बाहम सवाल करते हैं। कहते हैं तुम हमारे पास ताकत से आते थे। वो कहेंगे बल्कि तुम खुद ईमान लाने वाले न थे, वरना हमारा तुम पर कोई जोर न था, बल्कि तुम खुद सरकश लोग थे। बस हमारे बारे में हमारे रब का फैसला हतमी हो गया, अब हम अजाब चखेंगे। बस हमने तुम्हें गुमराह किया जबकि हम खुद भी गुमराह थे। तो उस दिन वो सब के सब अजाब में शरीक होंगे। हम मुजरिमों के साथ यकीनन ऐसा ही किया करते हैं। जब उनसे कहा जाता था अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो ये तकब्बुर करते थे और कहते थे क्या हम एक दीवाने शायर की खातिर अपने माबूदों को छोड़ दें? नहीं, बल्कि वो हक लेकर आए हैं और उसने रसूलों की तस्दीक की है। बतहकीक तुम दर्दनाक अजाब चखने वाले हो और तुम्हें सिर्फ उसकी जजा मिलेगी जो तुम करते थे। सिवाय अल्लाह के मुखलिस बंदों के उनके लिए एक मुअय्यन रिस्क है, हर किस्म के मेवे, और वो एहतराम के साथ होंगे नेमतों वाली जन्नत में। वो तख्तों पर एक दूसरे के साथ बैठे होंगे। बहती शराब के जाम उनसे फिराए जाएंगे जो चमकती होगी, पीने वालों के लिए लजीज होगी, जिसमें ना सर दर्द होगा और ना ही उससे उनकी अक्ल जाइल होगी। और उनके पास निगाह नीचे रखने वाली बड़ी आंखों वाली औरतें होंगी, गोया कि वो महफूज अंडे हैं। फिर वो आमने सामने बैठकर आपस में बातें करेंगे। उनमें से एक कहने वाला कहेगा मेरा एक हमनशीन था जो मुझसे कहता था क्या तुम कयामत की तस्दीक करने वालों में से हो? भला जब हम मर चुकेंगे और मिट्टी और हड्डियां हो जाएंगे तो क्या हमें जजा मिलेगी? इरशाद होगा क्या तुम देखना चाहते हो? फिर उसने झांका तो उसे वसत जहन्नुम में देखेगा। कहेगा कसम बखुदा करीब था कि तू मुझे भी हलाक कर दे, और अगर मेरे रब की नेमत ना होती तो मैं भी अजाब में हाजिर किए जाने वालों में होता। क्या अब हमें नहीं मरना? हमारी पहली मौत के बाद हमें कोई और अजाब ना होगा? यकीनन ये अजीम कामयाबी है। अमल करने वालों को ऐसी ही कामयाबी के लिए अमल करना चाहिए।
क्या ये मेहमानी अच्छी है या ज़क्कूम का दरख्त? हमने उसे जालिमों के लिए एक आजमाइश बना दिया है। ये ऐसा दरख्त है जो जहन्नुम की तह से निकलता है, उसके खोशे शयातीन के सरों जैसे हैं। फिर वो उसमें से खाएंगे और उससे पेट भरेंगे। फिर उनके लिए उस पर खौलता हुआ पानी मिला दिया जाएगा। फिर उनका ठिकाना बाहर सूरत जहन्नुम होगा। बिलाशुबा उन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह पाया, फिर वो उनके नक्शे कदम पर दौड़ पड़े और बतहकीक उनसे पहले अगलों की अक्सरियत गुमराह हो चुकी है और हमने उनमें तंबीह करने वाले रसूल भेजे थे। फिर देखो कि तंबीह शुदगान का क्या अंजाम हुआ, सिवाय अल्लाह के मुखलिस बंदों के। और नूह ने हमें पुकारा तो देखा कि हम कैसे बेहतरीन जवाब देने वाले हैं, और हमने उन्हें और उनके घर वालों को अजीम मुसीबत से बचाया, और उनकी नस्ल को हमने बाकी रहने वालों में रखा, और हमने आने वालों में उनके लिए जिक्र जमील बाकी रखा। तमाम आलमीन में नूह पर सलाम हो। हम नेकी करने वालों को ऐसे ही जजा देते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। फिर हमने दूसरों को गर्क कर दिया, और इब्राहिम यकीनन नूह के पैरोकारों में से थे। जब वो अपने रब की बारगाह में कल्बे सलीम लेकर आए, जब उन्होंने अपने बाप, चचा और कौम से कहा, तुम किसकी पूजा करते हो? क्या अल्लाह को छोड़कर गढ़े हुए माबूदों को चाहते हो? परवरदिगार आलम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? फिर उन्होंने सितारों पर एक नजर डाली और कहा, मैं तो बीमार हूं। चुनाचे वो लोग उन्हें पीछे छोड़ गए। फिर वो उनके माबूदों में जा घुसे और कहने लगे, तुम खाते क्यों नहीं हो? तुम्हें क्या हुआ है कि तुम बोलते नहीं हो? फिर उन्हें पूरी ताकत से मारने लगे तो लोग दौड़ते हुए उनके पास आए। इब्राहिम ने कहा, क्या तुम उसे पूछते हो जिसे तुम खुद तराशते हो? हालांकि खुद तुम्हें और जो कुछ तुम बनाते हो सबको अल्लाह ने पैदा किया है। उन्होंने कहा, उसके लिए एक इमारत तैयार करो, फिर उसे आग के ढेर में फेंक दो। बस उन्होंने उसके खिलाफ एक चाल चलने का इरादा किया, लेकिन हमने उन्हें ज़ेर कर दिया। और इब्राहिम ने कहा, मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूं, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे सौलेहीन में से औलाद अता कर। चुनाचे हमने उन्हें एक बुर्दबार बेटे की बशारत दी। फिर जब वो उनके साथ काम काज की उम्र को पहुंचा तो कहा, ऐ बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, बस देख लो तुम्हारी क्या राय है। उसने कहा, ऐ अब्बाजान, आपको जो हुक्म मिला है उसे अंजाम दें। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बस जब दोनों ने हुक्म खुदा को तस्लीम किया और उसे माथे के बल लिटा दिया तो हमने निदा दी, ऐ इब्राहिम, तूने ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक हम नेकोकारों को ऐसे ही जजा देते हैं। यकीनन ये एक नुमाया इम्तिहान था और हमने एक अजीम कुर्बानी से उसका फिदिया दिया, और हमने आने वालों में उनके लिए जिक्र जमील बाकी रखा। इब्राहिम पर सलाम हो। हम नेकोकारों को ऐसे ही जजा देते हैं। यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। और हमने इब्राहिम को इसहाक की बशारत दी कि वो सालेहीन में से नबी होंगे, और हमने उन पर और इसहाक पर बरकत नाजिल की। और उन दोनों की औलाद में नेकी करने वाला भी है और अपने नफ्स पर सरी जुल्म करने वाला भी। और बतहकीक मूसा और हारून पर हमने एहसान किया, और उन दोनों की कौम को अजीम मुसीबत से हमने नजात दी। और हमने उनकी मदद की तो वही गालिब आने वाले हो गए। और हमने उन दोनों को रोशन किताब दी, और उन दोनों को सीधा रास्ता हमने दिखाया। और हमने आने वालों में उन दोनों के लिए जिक्र जमील बाकी रखा। मूसा और हारून पर सलाम हो। हम नेकी करने वालों को ऐसे ही जजा देते हैं। ये दोनों हमारे मोमिन बंदों में से थे, और इलियास भी यकीनन पैगंबरों में से थे। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, क्या तुम अपना बचाव नहीं करते? क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतर खल्क करने वाले को छोड़ देते हो? अल्लाह ही तुम्हारा और तुम्हारे पहले बाप दादा का परवरदिगार है। तो उन्होंने उनकी तकजीब की,
बस वो हाजिर किए जाएंगे सवाए अल्लाह के मुखलिस बंदों के, और हमने आने वालों में उनके लिए जिक्र जमील बाकी रखा। आले यासीन पर सलाम हो। हम नेकी करने वालों को ऐसे ही जजा देते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे, और लूत भी यकीनन पैगंबरों में से थे। जब हमने उन्हें और उनके सब घर वालों को नजात दी सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में से थी, फिर हमने सबको हलाक कर दिया, और तुम दिन को भी उन बस्तियों से गुजरते रहते हो और रात को भी, तो क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? और यूनुस भी यकीनन पैगंबरों में से थे। जब वो भरी हुई कश्ती की तरफ भागे, फिर कुरा डाला तो वो मात खाने वालों में से हुए। फिर मछली ने उन्हें निगल लिया और वो अपने आप को मलामत कर रहे थे। फिर अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होते तो कयामत तक उस मछली के पेट में रह जाते। और हमने बीमार हालत में उन्हें चटियल मैदान में फेंक दिया, और हमने उन पर कद्दू की बेल उगाई, और हमने उन्हें 1,00,000 या उससे जायद लोगों की तरफ भेजा। फिर वो ईमान ले आए तो हमने एक वक्त तक उन्हें मताए हयात से नवाजा। बस आप उनसे पूछें, क्या तुम्हारे रब के लिए तो बेटियां हों और उनके लिए बेटे हों? क्या हमने फरिश्तों को जब मुअन्नस बनाया तो वो देख रहे थे? आगाह रहो, ये लोग अपनी तरफ से गढ़ कर कहते हैं कि अल्लाह ने औलाद पैदा की, और ये लोग यकीनन झूठे हैं। क्या अल्लाह ने बेटों की जगह बेटियों को पसंद किया? तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसे फैसले करते हो? क्या तुम गौर नहीं करते? या तुम्हारे पास कोई वाज़ेह दलील है? बस अपनी किताब पेश करो अगर तुम सच्चे हो। और उन्होंने अल्लाह में और जिनों में रिश्ता बना रखा है, हालांकि जिन्नात को इल्म है कि वो अल्लाह के सामने हाजिर किए जाएंगे। अल्लाह उनके हर बयान से पाक है, सिवाय अल्लाह के मुखलिस बंदों के जो ऐसी बात मंसूब नहीं करते। बस यकीनन तुम और जिन्हें तुम पूछते हो सब मिलकर अल्लाह के खिलाफ किसी को बहका नहीं सकते, सिवाय उसके जो जहन्नुम में झुलसने वाला है। और मलाइका कहते हैं, हम में से हर एक के लिए मकाम मुकर्रर है, और हम ही सफ बस्ता रहते हैं, और हम ही तस्बीह करने वाले हैं। और ये लोग कहा तो करते थे, अगर हमारे पास अगलों से कोई नसीहत आ जाती तो हम अल्लाह के मुखलिस बंदे होते, लेकिन अब उसका इनकार किया, लिहाजा अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा। और बतहकीक हमारे बंदगाने मुरसल से हमारा ये वादा हो चुका है। यकीनन वो मदद किए जाने वाले हैं, और यकीनन हमारा लश्कर ही गालिब आकर रहेगा। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुद्दत तक इनसे मुंह फेर ले और इन्हें देखते रहे कि अनकरीब ये खुद भी देख लेंगे। क्या ये हमारे अजाब में उजलत चाह रहे हैं? बस जब ये अजाब उनके दालान में उतरेगा तो तंबी शुदगान की सुबह बहुत बुरी होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुद्दत तक इनसे मुंह फेर ले और देखते रहे, अनकरीब ये खुद भी देख लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब जो इज्जत का मालिक है उन बातों से पाक है जो ये बयान करते हैं। और पैगंबरों पर सलाम हो, और सनाए कामिल उस अल्लाह के लिए है जो आलमीन का परवरदिगार है। साथ कसम है इस कुरान की जो नसीहत वाला है, मगर जिन्होंने इसका इनकार किया वो गुरूर और मुखालिफत में हैं। इनसे पहले हम कितनी कौमों को हलाक कर चुके हैं। फिर जब हलाकत का वक्त आया तो फरियाद करने लगे, मगर वो बचने का वक्त नहीं था। और उन्होंने इस बात पर ताज्जुब किया कि खुद
उन्हीं में से कोई तंबीह करने वाला आया और कुफ्फार कहते हैं ये झूठा जादूगर है। क्या इसने बहुत से माबूदों की जगह सिर्फ एक माबूद बना लिया? ये तो यकीनन बड़ी अजीब चीज है। और इनमें से कौम के सरकर्दा लोग ये कहते हुए चल पड़े, चलते रहो और अपने माबूदों पर कायम रहो, इस चीज में यकीनन कोई गर्ज है। हमने कभी ये बात किसी पिछले मजहब से भी नहीं सुनी। ये तो सिर्फ एक मन घड़त बात है। क्या हमारे दरमियान इसी पर यह जिक्र नाजिल किया गया? दर हकीकत ये लोग मेरे जिक्र पर शक कर रहे हैं, बल्कि अभी तो इन्होंने अजाब चखा ही नहीं है। क्या इनके पास तेरे गालिब आने वाले फैयाज रब की रहमत के खजाने हैं, या आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके दरमियान है सब पर इनकी हुकूमत है? अगर ऐसा है तो आसमान के रास्तों पर चढ़ देखें। ये लश्करों में से एक छोटा लश्कर है जो इसी जगह शिकस्त खाने वाला है। इनसे पहले नूह और आद की कौम और मेघों वाले फिरऔन ने तकसीब की थी, और समूद और लूत की कौम और ऐका वालों ने भी, और ये है वो बड़ा लश्कर। उनमें से हर एक ने रसूलों को छुटलाया तो मेरा अजाब लाजिम हो गया, और ये लोग सिर्फ एक चीख के मुंतजिर हैं जिसके साथ कोई मोहलत नहीं होगी। और वो अज़रुए तमस्खुर कहते हैं, ए हमारे रब, हमारा अजाब का हिस्सा हमें हिसाब के दिन से पहले दे दे। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ये कहते हैं उस पर सब्र कीजिए और इनसे हमारे बंदे दाऊद का किस्सा बयान कीजिए, जो ताकत के मालिक और अल्लाह की तरफ बार बार रुजू करने वाले थे। हमने उनके लिए पहाड़ों को मुसख्खर किया था, ये सुबह शाम उनके साथ तस्बीह करते थे, और परिंदों को भी मुसख्खर किया, ये सब इकट्ठे होकर उनकी तरफ रुजू करने वाले थे। और हमने उनकी सल्तनत मुस्तहकम कर दी और उन्हें हिकमत अता की और फैसला कुन गुफ्तार की सलाहियत दे दी। और क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुकदमे वालों की खबर पहुंची है, जब वो दीवार फांद कर मेहराब में दाखिल हुए? जब वो दाऊद के पास आए तो वो उनसे घबरा गए। उन्होंने कहा, खौफ ना कीजिए, हम निजा के दो फरीक हैं। हम में से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है, लिहाजा आप हमारे दरमियान बरहक फैसला कीजिए और बेइंसाफी ना कीजिए और हमें सीधा रास्ता दिखा दीजिए। ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास सिर्फ एक दुम्बी है। ये कहता है कि उसे मेरे हवाले करो और गुफ्तगू में मुझ पर दबाव डालता है। दाऊद कहने लगे, तेरी दुम्बी अपनी दुम्बियों के साथ मिलाने का मुतालबा करके यकीनन ये तुझ पर जुल्म करता है, और अक्सर शरीक एक दूसरे पर ज्यादती करते हैं, सिवाय उन लोगों के जो ईमान रखते हैं और नेक अमाल बजा लाते हैं, और ऐसे लोग थोड़े होते हैं। फिर दाऊद को ख्याल आया कि हमने उन्हें आजमाया है, चुनाचे उन्होंने अपने रब से माफी मांगी और आजिज़ी करते हुए झुक गए और अल्लाह की तरफ रुजू किया। बस हमने उनकी इस बात को माफ किया और यकीनन हमारे नजदीक उनके लिए तकर्रुब और बेहतर बाज़गश्त है। ए दाऊद, हमने आपको जमीन में खलीफा बनाया है, लिहाजा लोगों में हक के साथ फैसला करें और ख्वाहिश की पैरवी ना करें। वो आपको अल्लाह की राह से हटा देगी। जो अल्लाह की राह से भटकते हैं उनके लिए यौम हिसाब फरामोश करने पर यकीनन सख्त अजाब होगा। और हमने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके दरमियान है को
بے مقصد پیدا نہیں کیا، یہ کفار کا گمان ہے۔ ایسے کافروں کے لیے آتش جہنم کی تباہی ہے۔ کیا ہم ایمان لانے اور اعمال صالح بجا لانے والوں کو زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح قرار دیں یا اہل تقوی کو بدکاروں کی طرح قرار دیں؟ یہ ایک ایسی بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا جو بہترین بندے اور اللہ کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے۔ جب شام کے وقت انہیں عمدہ تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا، میں نے گھوڑوں کے ساتھ ایسے محبت کی جیسے خیر سے محبت کی جاتی ہے، اور اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو گیا یہاں تک کہ پردے میں چھپ گیا۔ بولے، انہیں میرے پاس واپس لے آؤ۔ پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ان کے تخت پر ایک جسد ڈال دیا۔ پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، کہا، میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کے شایان شان نہ ہو، یقیناً تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ پھر ہم نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، جدھر وہ جانا چاہتے ان کے حکم سے نرمی کے ساتھ اسی طرف چل پڑتی تھی، اور ہر قسم کے معمار اور غوطہ خور شیاطین کو بھی مسخر کیا، اور دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ ہماری عنایت ہے، جس پر چاہو احسان کرو اور جس کو چاہو روک دو، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اور ان کے لیے ہمارے ہاں یقیناً قرب اور نیک انجام ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، شیطان نے مجھے تکلیف اور اذیت دی ہے۔ ہم نے کہا، اپنا پاؤں مارے، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے۔ اور ہم نے انہیں اہل و عیال دیے اور ان کے ساتھ اتنے مزید دیے اپنی طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ ہم نے کہا، اپنے ہاتھ میں ایک گچھا تھام لے اور اسی سے مارے اور قسم نہ توڑے۔ ہم نے انہیں صابر پایا، وہ بہترین بندے تھے، بے شک وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجئے، جو طاقت اور بصیرت والے تھے۔ ہم نے انہیں ایک خاص صفت کی بنا پر مخلص بنایا، وہ دار آخرت کا ذکر ہے، اور وہ ہمارے نزدیک یقیناً برگزیدہ نیک افراد میں سے تھے۔ اور اے رسول، اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کیجئے، یہ سب نیک لوگوں میں سے ہیں۔ یہ ایک نصیحت ہے اور تقوی والوں کے لیے یقیناً اچھا ٹھکانہ ہے۔ وہ دائمی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور بہت سے میوے اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ بات ہے جس کا روز حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ ہمارا وہ رزق ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو اہل تقوی کے لیے ہے، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم، جس میں وہ جھلس جائیں گے، بس وہ بدترین بچھونا ہے۔ یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ جس کا ذائقہ وہ چکھیں، اور اس قسم کی مزید بہت سی چیزوں کا۔ یہ ایک جماعت تمہارے ساتھ جہنم میں گھسنے والی ہے، ان کے لیے کوئی خیر مقدم نہیں ہے، یہ یقیناً آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ وہ کہیں گے، تمہارے لیے کوئی خیر مقدم نہیں ہے،
बल्कि तुम ही तो ये मुसीबत हमारे लिए लाए हो। बस कैसी बदतरीन जगह है। वो कहेंगे, हमारे परवरदिगारा जिसने हमें इस अंजाम से दो चार किया है उसे आग में दुगना अजाब दे। और वो कहेंगे, क्या बात है, हमें वो लोग नजर नहीं आते जिन्हें हम बुरे अफराद में शुमार करते थे। क्या हम यूं ही उनका मजाक उड़ाया करते थे, या अब हमारी आंखें उन्हें नहीं पाती। ये जहन्नमियों के बाहमी झगड़े की हतमी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, मैं तो सिर्फ तंबीह करने वाला हूं और कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के जो वाहिद कहार है। वो आसमान और जमीन और जो कुछ उनके दरमियान है सब का मालिक है। वो बड़ा गालिब आने वाला, बड़ा माफ करने वाला है। कह दीजिए, ये एक बड़ी खबर है जिससे तुम मुंह फेरते हो। मुझे आलम बाला का इल्म न था जब वो फरिश्ते बहस कर रहे थे। मेरी तरफ वही बहस इसलिए होती है कि मैं नुमाया तौर पर फकत तंबीह करने वाला हूं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने फरिश्तों से फरमाया, मैं मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूं, बस जब मैं उसे दुरुस्त बना लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो उसके लिए सजदे में गिर पड़ना। चुनाचे तमाम के तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, जो अकड़ बैठा और काफिरों में से हो गया। फरमाया, ए इब्लीस, जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है, उसे सजदा करने से तुझे किस चीज ने रोका? क्या तूने तकब्बुर किया है या तू ऊंचे दर्जे वालों में से है? उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूं। मुझे तूने आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से बनाया है। फरमाया, बस निकल जा यहां से कि तू यकीनन मरदूद है और यौम जज़ा तक तुम पर मेरी लानत है। उसने कहा, मेरे रब, बस उन लोगों के उठाए जाने के रोज तक मुझे मोहलत दे। फरमाया, तू मोहलत मिलने वालों में से है, मुअय्यन वक्त के दिन तक। कहने लगा, मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं उन सबको बहका दूंगा, उनमें से सिवाय तेरे खालिस बंदों के। फरमाया, हक तो यह है और मैं हक बात ही करता हूं कि मैं तुझसे और उनमें से तेरी पैरवी करने वालों से जहन्नुम को जरूर पुर कर दूंगा। कह दीजिए, मैं तुम लोगों से इस बात का अज्र नहीं मांगता और न ही मैं बनावट वालों में से हूं। यह तो आलमीन के लिए सिर्फ नसीहत है और तुम्हें इसका इल्म एक मुद्दत के बाद होगा। इस किताब का नुज़ूल बड़े गालिब आने वाले और हिकमत वाले अल्लाह की तरफ से है। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये किताब बरहक नाजिल की है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन को इसी के लिए खालिस करके सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। आगाह रहो, खालिस दीन सिर्फ अल्लाह के लिए है और जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर औरों को सरपरस्त बनाया है, उनका कहना है कि हम उन्हें सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि वो हमें अल्लाह का मुकर्रब बना दे। अल्लाह उनके दरमियान यकीनन उन बातों का फैसला करेगा जिनमें वो इख्तिलाफ करते हैं। अल्लाह झूठे मुनकिर को यकीनन हिदायत नहीं करता है। अगर अल्लाह किसी को अपना बेटा बनाना चाहता तो अपनी मखलूक में से जिसे चाहता मुंतखब कर लेता। वो पाकीज़ा है और वो अल्लाह यकता गालिब है। उसी ने आसमानों और जमीन को बरहक पैदा किया है। वही रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है, और उसने सूरज और चांद को मुसख्खर किया है। ये सब एक मुकर्ररा वक्त तक चलते रहेंगे। आगाह रहो, वही बड़ा गालिब आने वाला
माफ करने वाला है। उसी ने तुम्हें एक जान से पैदा किया, फिर उससे उसका जोड़ा बनाया, और उसी ने तुम्हारे लिए चौपाओं में से 8 जोड़े बनाए। वही तुम्हारी माओ के शिकमों में 3 तारीकियों में एक खिलकत के बाद दूसरी खिलकत देता है। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है। उसी की बादशाही है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहां फिरे जाते हो? अगर तुम कुफ्र करो तो यकीनन अल्लाह तुमसे बेनियाज है, और वो अपने बंदों के लिए कुफ्र पसंद नहीं करता। और अगर तुम शुक्र करो तो वो उसे तुम्हारे लिए पसंद करेगा। और कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुम्हें अपने रब की बारगाह की तरफ लौटना है, फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। यकीनन वो दिलों का हाल खूब जानने वाला है। और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो अपने रब की तरफ रुजू करके उसे पुकारता है। फिर जब वो उसे अपनी तरफ से कोई नेमत देता है तो जिसे पहले पुकारता था उसे भूल जाता है और अल्लाह के लिए शरीक बनाने लगता है, ताकि उसकी राह से दूसरों को गुमराह कर दे। कह दीजिए, अपने कुफ्र से थोड़ा सा लुत्फ अंदोज हो जा, यकीनन तू जहन्नुमियों में से है। मुशरिक बेहतर है या वो शख्स जो रात की घड़ियों में सजदे और कयाम की हालत में इबादत करता है, आखिरत से डरता है और अपने रब की रहमत से उम्मीद लगाए रखता है। कह दीजिए, क्या जानने वाले और ना जानने वाले यकसा हो सकते हैं? बेशक नसीहत तो सिर्फ अक्ल वाले ही कबूल करते हैं। कह दीजिए, ए मेरे मोमिन बंदो, अपने रब से डरो। जो इस दुनिया में नेकी करते हैं उनके लिए भलाई है, और अल्लाह की जमीन बहुत वसी है। यकीनन बेशुमार सवाब तो सिर्फ सब्र करने वालों ही को मिलेगा। कह दीजिए, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं दीन को उसके लिए खालिस करके अल्लाह की बंदगी करूं, और मुझे यह हुक्म भी मिला है कि मैं सबसे पहला मुस्लिम बनूं। कह दीजिए, अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो बड़े दिन के अजाब से डरता हूं। कह दीजिए, मैं अल्लाह ही की बंदगी करता हूं, अपने दीन को उसके लिए खालिस रखते हुए। बस तुम अल्लाह के अलावा जिस जिस की बंदगी करना चाहो करते रहो। कह दीजिए, घाटे में तो यकीनन वो लोग हैं जो कयामत के दिन खुद को और अपने अयाल को घाटे में डाल दें। खबरदार, यही खुला घाटा है। उनके लिए उनके ऊपर आग के साइबान और उनके नीचे भी शोले होंगे। ये वो बात है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है। बस ए मेरे बंदो, मुझसे डरो, और जिन लोगों ने तागूत की बंदगी से इज्तिनाब किया और अल्लाह की तरफ रुजू किया, उनके लिए खुशखबरी है। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे उन बंदों को बशारत दे दीजिए जो बात को सुना करते हैं और उसमें से बेहतर की पैरवी करते हैं। यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी है, और यही साहिबान अक्ल हैं। भला जिस शख्स पर अजाब का फैसला हतमी हो गया हो, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बचा सकते हैं जो आग में गिर चुका हो? लेकिन जो अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके लिए बाला खाने हैं, जिनके ऊपर मजीद बाला खाने बने हुए हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखा कि अल्लाह आसमान से पानी नाजिल करता है, फिर चश्मे बनाकर उसे जमीन में जारी करता है, फिर
اس سے رنگ برنگی فصلیں اگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی ہیں، پھر وہ اسے بھوسا بنا دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے یقیناً اس میں نصیحت ہے۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور جسے اپنے رب کی طرف سے روشنی ملی ہو، سخت دل والوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل ذکر خدا سے سخت ہو جاتے ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے ایسی کتاب کی شکل میں بہترین کلام نازل فرمایا ہے جس کی آیات باہم مشابہ اور مکرر ہیں، جس سے اپنے رب سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور دل نرم ہو کر ذکر خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس سے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ کیا وہ شخص جو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے منہ کو سپر بناتا ہے، وہ امن پانے والوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا، چکھو اس کا ذائقہ جو تم کماتے تھے۔ ان سے پہلوں نے تکذیب کی تو ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر اللہ نے انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی کا ذائقہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، اے کاش وہ جان لیتے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں دی ہیں، شاید وہ نصیحت حاصل کریں۔ ایسا قرآن جو عربی ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، تاکہ یہ تقوی اختیار کریں۔ اللہ ایک شخص غلام کی مثال بیان فرماتا ہے جس کی ملکیت میں کئی بدخو مالکان شریک ہیں، اور ایک دوسرا مرد غلام ہے جس کا صرف ایک ہی آقا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ کو بھی انتقال کرنا ہے اور انہیں بھی یقیناً مرنا ہے، پھر قیامت کے دن تم سب اپنے رب کے سامنے مقدمہ پیش کرو گے۔